السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں الدرس الخامس لیسن نمبر 5 کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے پچھلے سبق میں اس سبق کے الفاظ، معنی اور ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس سبق سے متعلق تمارین حل کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس لیسن نمبر 5، آج ہمارے سبق کا 13واں دن ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس سبق سے متعلق عربی قواعد پڑھیں گے، اور عربی قواعد میں ہم ضمیر المخاطب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر المخاطب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مخاطب ہو ہم سے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث، تو اس کے لیے ہم کون سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ ضمیر المخاطب استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہیں انتا۔ انتا کے معنی ہیں آپ، ایک مذکر۔ انتما، آپ، دو مذکر۔ پھر ہے انتم۔ انتم کے معنی ہیں آپ، تین یا تین سے زائد مذکر۔ اسی طریقے سے انتی۔ انتی کے معنی ہیں آپ، ایک مؤنث۔ انتما، آپ دو مؤنث، اور انتنا، آپ تین یا تین سے زائد مؤنث۔ آپ نے دیکھا انتا جو کہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوا، یہ بالکل ایسے ہی استعمال ہوا جیسے کہ انتی مؤنث کے لیے استعمال لکھا گیا ہے۔ انتا اور انتی دونوں لکھنے میں ایک سے ہیں بالکل، لیکن صرف حرکت کے فرق سے دونوں مذکر مؤنث میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے انتا، تا زبر تا اگر ہو تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تا زیر تی ہو تو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح انتما، انتما مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کیے گئے۔ انتم جمع مذکر کے لیے، جبکہ انتنا جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اسی سے متعلق مشق کی طرف۔ صفحہ ہے، صفحہ نمبر 44 اور 45 میں یہ مشق، اور مثال ہے ہمارے پاس انتم طلاب، کیا آپ سب طالب علم ہیں۔ یہ جمع میں ہے جملہ، آپ کو اس جملے کو جمع مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، یعنی جملہ جمع مذکر میں ہے اور اسے جمع مؤنث میں تبدیل کریں گے۔ آج چونکہ سوالیہ لفظ ہے تو یوں ہی رہے گا۔ انتم جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جگہ استعمال کریں گے انتنا، تو ہو جائے گا انتنا۔ طلابن جمع مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ استعمال ہوگا طالبات۔ طالبات میں الف تائے طویلہ استعمال کرنے سے اگر جمع سالم ہو تو یاد رکھیے گا، جمع مؤنث بنانے کے لیے الف اور تائے طویلہ کا مطلب ہے بڑی والی تا، استعمال کرنے سے یہ جمع مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جملہ بنا انتنا طالبات، کیا آپ سب طالبات ہیں۔ جملہ نمبر 1 کو حل کریں گے۔ انتنا مدرسون، کیا آپ سب استاد ہیں۔ تو چونکہ سوالیہ لفظ ہے تو یوں ہی لکھا جائے گا، انتم کی جگہ ہو جائے گا انتنا، اور مدرسون کی جگہ واو نون کو ہٹا کر الف تائے طویلہ کا استعمال کریں گے تو بن جائے گا مدرسات۔ تو جملہ بنے گا انتنا مدرسات، کیا آپ سب استانیہ ہیں۔ دوسرا جملہ ہے انتم اطباء، کیا آپ سب ڈاکٹر ہیں۔ یوں ہی رہے گا، انتم کی جگہ انتنا استعمال کریں گے۔ اطباء جمع مذکر مکسر ہے، مکسر میں کوئی جس کا رول نہ ہو، تو یہاں پر ہم جمع مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کریں گے، یوں ہی لکھیں گے، انتم کی جگہ انتنا لکھیں گے، اور اطباء کی جگہ طبیبات آ جائے گا۔ تو جملہ بنے گا انتنا طبیبات، کیا آپ سب لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ جملہ نمبر 3 ہے انتم اخوۃ حامد، تو یہاں پر یوں ہی لکھا جائے گا، انتم کی جگہ انتنا استعمال کریں گے، اخوۃ کی جگہ اخوات استعمال کریں گے، اور حامد یوں ہی لکھا جائے گا۔ تو جملہ مکمل یوں لکھا جائے گا انتنا اخوات حامد، کیا آپ سب حامد کی بہنیں ہیں۔ چوتھا جملہ ہے انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں۔ تو
जुमले को तब्दील इस तरह करेंगे, आ यूं ही लिखा जाएगा, अंतुम की जगह अंतुन्ना लिखेंगे और मुस्लिमूना में वाव नून को हटाकर अलिफ ताए तवीला लगाकर मुस्लिमात बना देंगे। जुमला यूं लिखेंगे, आ अंतुन्ना मुस्लिमात, क्या आप सब मुसलमान खवातीन हैं। जुमला नंबर 5 है, आ अंतुम आमामु महमूदुन, क्या आप सब महमूद के चचा हैं। तो जुमले को तब्दील करते हुए यूं लिखेंगे, आ यूं ही लिखा जाएगा, अंतुम की जगह हो जाएगा अंतुन्ना, आमामू की जगह आमामात हो जाएगा और महमूद की जगह महमूद ही लिखा जाएगा। जुमला मुकम्मल यूं लिखेंगे, आ अंतुन्ना आमामात महमूदुन, क्या आप सब महमूद की चचियां हैं। जुमला नंबर 6 में यही आ यूं ही लिखा जाएगा, अंतुम की जगह अंतुन्ना आएगा, अबनाऊ की जगह बनात और अलमुदीरू अलमुदीरी की जगह अलमुदीरात लिखेंगे। तो जुमला मुकम्मल होगा, आ अंतुन्ना बनातुल मुदीरात। जुमला नंबर 7 में क्या कहना है, उसे इसी तरह तब्दील करेंगे जिस तरह हमने पहले वाले जुमलों को तब्दील किया। आ यूं ही लिखा जाएगा, अंतुम की जगह अंतुन्ना, आबाऊ की जगह होगा उम्महात और अत्तुल्लाबु की जगह हो जाएगा अत्तालिबात। तो जुमला मुकम्मल लिखेंगे, आ अंतुन्ना उम्महातुत तालिबात। इस तरह आपको ये मश्क कंप्लीट करना है, यानी मुकम्मल करना है और किताब ही में सफाई से करना है। अब हम आते हैं दूसरी मश्क की तरफ, लेकिन दूसरी मश्क से पहले हम एक कायदे को जानेंगे, क्योंकि हमारे अगला जो मश्क है वो इसी कायदे से मुतल्लिक है। इसका नाम है अज़मीरुल मिल्किया। ज़मीरुल मिल्किया किससे कहते हैं, अभी आपने ज़मीरुल मुखातिब के बारे में पढ़ा। ज़मीरुल मुखातिब की जगह कुछ हर्फ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंता की जगह काफ ज़बर का। ये ज़मीरुल मुखातिब की तरफ इशारा करता है और इसका मतलब है आप एक मुज़क्कर। इन हर्फों का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी की मिल्कियत को जाहिर करना हो, जैसे कि कलम। ये अगर किसी मुखातिब से मंसूब करना हो, यानी ये बताना हो कि ये मुज़क्कर का कलम है, इस लड़के का कलम है, तो हम इन हर्फों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वो मुअन्नस हो या 2 हो या 3 हो, तो उसके लिए अलग अलग हर्फों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम इस सबक में पढ़ेंगे। आपने सबसे पहले पढ़ा अंता। अंता की जगह हम इस्तेमाल करते हैं काफ ज़बर का, जो कि एक मुखातिब मुज़क्कर की तरफ इशारा करता है। इसी तरह अंतुमा की जगह इस्तेमाल करते हैं काफ मीम अलिफ कुमा, कुमा यानी आप 2 मुज़क्कर। इसी तरीके से अंतुम की जगह इस्तेमाल करते हैं काफ मीम कुम, और ये इशारा करता है आप 3 या 3 से ज़ायद जमा मुज़क्कर। अब मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अंता। मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ हरकत की फ़र्क की वजह से वो मुअन्नस में इस्तेमाल हो जाता है, जैसे अंती। इसी तरीके से काफ ज़बर का अगर मुखातिब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो काफ ज़ेर की मुखातिब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आप एक मुअन्नस। इसी तरीके से अंतुमा कुमा इस्तेमाल करेंगे और इसके मायने हैं आप 2 मुअन्नस। इसी तरह अंतुन्ना की जगह कुन्ना का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि आप 3 या 3 से ज़ायद मुअन्नस। आपने इस चार्ट को पढ़ा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसे याद कीजिएगा, हो सके तो इसे सफाई से कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। अब हम इसी से मुतल्लिक मश्क करेंगे। सफ़ा नंबर है 45। आपके पास मिसाल में एक जुमला मौजूद है, आइना बैतुकुम या इखवान, कहाँ हैं आप सबके घर ए मेरे भाइयों। तो आपको इस जुमले को मुअन्नस में तब्दील करना है। मुअन्नस में तब्दील करने के लिए क्या करना है, आइना यूं ही लिखा जाएगा क्योंकि यह सवालिया लफ्ज़ है, बैतु इस्म है, यूं ही लिखा जाएगा। कुम की जगह आपने अभी पढ़ा था जमा मुअन्नस के लिए हम कुन्ना का इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा आइना बैतुकुन्ना, या यूं ही लिखा जाएगा, इखवान की जगह हो जाएगा अखावात। तो जुमला मुकम्मल हुआ, आइना बैतुकुन्ना या अखावात। अब पहला जुमला है जिसे आपको तब्दील करना है, आइना अखूकुम या अखवान, कहाँ हैं आप सबके भाई ए मेरे भाइयों। तो आइना यूं ही लिखा जाएगा,
अखू यूं ही लिखा जाएगा, कुम की जगह इस्तेमाल करेंगे कुन्ना, या यूं ही लिखा जाएगा और इखवान की जगह लिखा जाएगा अखवात। तो जुमला बनेगा आइना अखू कुन्ना या अखवात, कहाँ हैं आप सबके भाई ए मेरी बहनों। जुमला नंबर 2 है आइना मुदर्रसु मदरसतुकुम या इखवान, कहाँ हैं आप सबके स्कूल या मदरसे ए मेरे भाइयों। तो आइना चूँकि सवालिया लफ्ज़ है यूं ही लिखा जाएगा, मदरसतु यूं ही लिखा जाएगा, कुम की जगह हो जाएगा कुन्ना, या इखवान की जगह हो जाएगा या अखवात। तो जुमला मुकम्मल होगा आइना मदरसतुकुन्ना या अखवात। तीसरा जुमला है मता अखबारुकुम या इखवान, मता चूँकि सवालिया लफ्ज़ है यूं ही लिखा जाएगा, अखबारुकुम की जगह हो जाएगा अखबारुकुन्ना, या इखवान की जगह होगा या अखवात। तो जुमला मुकम्मल यूं लिखेंगे मता अखबारुकुन्ना या अखवात। जुमला नंबर 4 है अहाज़ा अम्मुकुम या इखवान। तो यहाँ पर आपको इन तीनों जुमलों को खुद हल करना है। इसके लिए आसानी आपको दी जा रही है, जिन लफ्ज़ों को तब्दील करना है उनके नीचे खत खींचा जा रहा है ताकि आपको आसानी हो और ये पता चले कि तब्दीली कहाँ कहाँ करनी है। हाज़ा अम्मुकुम और इखवान। अब जुमले में क्या करेंगे, आ यूं ही लिखा जाएगा, हाज़ा चूँकि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं हाज़िही, ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अहाज़ा की जगह हो जाएगा अहाज़िही, अम्मुकुम की जगह हो जाएगा अम्मुकुन्ना, या इखवान की जगह हो जाएगा या अखवात। तो जुमला मुकम्मल होगा अहाज़िही अम्मुकुन्ना या अखवात। जुमला नंबर 5 में है अबैतुकुम करीबुन या इखवान। अब तब्दीली कहाँ आनी है, बैतुकुम और इखवान में। तो जुमला क्या होगा, आ यूं ही लिखा जाएगा, बैतुकुम की जगह हो जाएगा बैतुकुन्ना, करीबुन यूं ही लिखा जाएगा और या इखवान की जगह हो जाएगा या अखवात। जुमला मुकम्मल यूं लिखेंगे अबैतुकुन्ना करीबुन या अखवात। जुमला नंबर 6 में तब्दीली कहाँ आएगी, कुम में यानी अखबारुकुम में और इखवान में। तो जुमला मुकम्मल यूं लिखेंगे फी अय्यी शहरिन अखबारुकुन्ना या अखवात। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। आपको निहायत सफाई के साथ ये किताब ही में हल करना है। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 45 में ही आपके पास दूसरा सवाल है। इसके बारे में आपने आगाज़ में ही एक मश्क और चार्ट में पढ़ा था कि हम ज़मीरुल मुखातिब मुज़क्कर हो या मुअन्नस उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास 4 हैं लफ्ज़ ज़मीरुल मुखातिब, जिनको इस्तेमाल करते हुए आपको इन खाली जगह को पुर करना है। अंता, अंतुम, अंती या अंतुन्ना। अंता के बारे में दोबारा वजाहत कर दूं। अंता अगर एक मुज़क्कर हो तो इस्तेमाल करते हैं, अंतुम जमा मुज़क्कर हो तो इस्तेमाल करते हैं, अंती जमा अंती अगर एक मुअन्नस हो तो इस्तेमाल करते हैं, और अंतुन्ना जब जमा मुअन्नस हो तो इस्तेमाल करते हैं। तो खाली जगह में सबसे पहला जुमला है आ डैश मुस्लिमुन। तो मुस्लिमुन के मायने हैं एक मुज़क्कर की बात हो रही है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ इस्तेमाल करेंगे अंता। अंता मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान हैं। इसी तरह दूसरा जुमला है आ डैश मरीज़तुन। मरीज़तुन को पढ़कर अंदाज़ा हो गया होगा कि एक मुअन्नस की बात हो रही है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ अंती। अंती मरीज़तुन, क्या आप मरीज़ा हैं यानी बीमार हैं। तीसरा जुमला है आ डैश तबीबात। तबीबात से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जमा मुअन्नस की बात हो रही है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे अंतुन्ना तबीबात, क्या आप सब लेडी डॉक्टर हैं। चौथा जुमला है आ डैश तुज्जारुन। तुज्जारुन से क्या मालूम हुआ, ये जमा मुज़क्कर की बात हो रही है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ अंतुम। अंतुम तुज्जारुन, क्या आप सब ताजिर हैं। इसी तरह नंबर 5 में आ डैश बिन्तुल मुदर्रिस, ये उस्ताद की बेटी हैं। तो उस्ताद की बेटी, बेटी की तरफ इशारा हो रही है, तो कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे,
اس کے مطابق یہاں پر ضمیر المخاطب استعمال کریں۔ نمبر 6 ڈیش اخوات عباس، کیا عباس کی بہنیں، عباس کی بہنوں کی طرف، بہن کی جمع استعمال ہوا تو جمع مؤنث کی بات ہوئی، کیا استعمال کریں گے؟ ڈیش طلاب، بہت سارے جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا استعمال کریں گے؟ یہ دھیان سے اور سمجھ کر آپ کو حل کرنا ہے اور کتاب ہی میں صفائی سے کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ ہدایت 1 صفحہ 44 اور 45، سوال نمبر 2 کتاب ہی میں صفائی سے کریں۔ ہدایت 2 صفحہ 45 سوال 3 کتاب ہی میں صفائی سے کریں۔ ہدایت 3 صفحہ 45 سوال 4 سوال نمبر 4 کتاب ہی میں صفائی سے کریں۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔